So now we'll be discussing practically Excel ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। So ਦੇਖੋ this is the office button जैसे word ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। office button ਦੇ ਵਿੱਚ new अगर new कोई sheet खोलनी है ठीक है, new workbook खोलनी है या कोई installed template है। installed templates ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ प्री बिल्ट काम करन दे स्टाइल्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ सेटिंग की हुई है, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਰੈਕਰ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੋਨ ਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਰਸਨਲ ਮੰਥਲੀ ਬਜਟ, ਸੇਲਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਟਾਈਮ ਕਾਰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਇੰਸਟਾਲਡ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। सो ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਲੈਂਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਲੈਂਕ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਪਨ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੇਵ ਐਂਡ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਰਡ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੇ ABC1 ਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ 1 ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਜਿਹੜੀ CSV ਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ। ਐਕਸਲ ਵਰਕਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर ਅਸ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਵਰਕਬੁੱਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੇਵ ਐਂਡ ਸੇਵ ਐਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ BCC1 ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BCC ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BCC1 ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਸੇਵ ਐਂਡ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂजेस ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਨੇਮ ਆਫ ਫਾਈਲ ਐਂਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਈਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਚੇਂजेस ਔਰ you can make changes later on ठीक है। ਤੇ ਸੇਵ ਜਿਹੜੀ ਬਟਨ ਹੈ, ਸੇਵ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦਿਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਐਂਡ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂजेस ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ। So that was difference between save and save as and it is very important for everyone to know. फिर print ਦੇ ਵਿੱਚ same ਹੋਈ preview ਦੀ option ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ display ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ margins ਲਿਖਾ ਦੋ like that। ਉਹ preview ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੇਟਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਲਾਈਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ I तक 9 कॉलम्स डिस्प्ले होंगे
अगर असं इतने प्रिंट की कमांड देवेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो भी है प्रिंटर इंस्टॉल्ड है वो दिख जाएगा। इतने और प्रॉपर्टीज आप चेंज करनी ने, कितनी कॉपीज प्रिंट करनी ने, सारे पेजेस का प्रिंट करना है या कुछ फ्यू पेजेस का प्रिंट करना है। सो इतों पेजेस सिलेक्ट करके असं उन्हें पेजेस का इतों तो लैके इतने तक लाइक 1 तो लैके 3 पेजेस का प्रिंट कटो। तो कितनी कॉपीज 2 3 4 5। ठीक है, इतने आप ज्यादा नंबर भी लिख सकते हैं कि 10 कॉपीज प्रिंट करनी ने इस पेज दिया 3 पेजेस दिया 1 to 3। ठीक है, या फिर असी सिलेक्शन कह सकते हैं। सिलेक्शन मतलब असी कोई सिलेक्ट किया हुआ है एरिया, उन्हें एरिया का ही प्रिंट करना है। ठीक है, एक्टिव शीट सिर्फ इसे शीट का करना है। ठीक है, फिर एंटायर वर्कबुक मतलब 1-2-3 शीट्स है, इस तो इलावा होर भी शीट्स ने, सारी शीट्स का प्रिंट करना है। वो सारी चीज़ें असी इतों सैट कर सकते हैं। फिर प्रिपेयर दे विच इट इज द सेम थिंग, असी इस एक्सेल फाइल की प्रॉपर्टीज सैट करते हैं कि कौन है इसका ऑथर, किने बनाई है ये फाइल, की टाइटल है इसका बेसिक कंप्यूटर कोर्स, सब्जेक्ट की है कंप्यूटर्स, एक्सेल इन कंप्यूटर्स। जस्ट अ मिनट, ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ एक्सेल इन कंप्यूटर सब्जेक्ट है। कीवर्ड कोई भी कीवर्ड ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ वर्ड ਨੂੰ सर्च करे तो ये चीज डिस्प्ले ਹੋਵੇ। कैटेगरी कंप्यूटिंग, स्टेटस कुछ भी नहीं, स्टेटस इज समथिंग एवरीथिंग, कमेंट्स कुछ भी तुम लिख सकते हो, ऑल इज वेल। ये चीज़ा हो गया। सो ये असी सैटिंग ये कर दी, राइट। प्रिपेयर हो गया, सो सानू प्रॉपर्टीज पता लग गया। हुण उस तो बाद जो असी प्रॉपर्टीज लिखिया उसका बेनिफिट की होएगा, और देखो सेव करके थानू दिखाने मैं। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ BCC 1 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਥਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, सो वी विल नॉट डू दैट, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो अपने आप आफ्टर डूइंग योर वर्क। फिर उसके बाद ਅਸੀਂ सेंड, अगर इसमें ईमेल या फैक्स भेजना हो तो ये ऑप्शन है। पब्लिश ਅਸੀਂ ऑनलाइन पब्लिश करना हो या किसी सर्वर के उत्ते रखना हो पब्लिश आप इतने कर सकते हैं। क्लोज के नाल जो अंदर वाली फाइल है वो क्लोज हो जाएगी BCC 1। ठीक है, फिर ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये 2-4 मेन्यूज होंगे ने अवेलेबल। फिर अपने को रिबन्स ने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूले, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। सो असी होम रिबन दे विच देखते हैं कि असी जो कोई चीज़ सिलेक्ट कर ली फिर कट एंड कॉपी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब देखो क्लिक किया, फिर इसमें असी कट कर देंगे, किसी और जगह जाके पेस्ट कर देंगे, उत्ते पेस्ट हो गया। ठीक है, फिर या फिर इसमें इतों असी कॉपी कर लिया, उन्होंने इत्थे पेस्ट करता, अगे पेस्ट करता, जिथे भी असी पेस्ट करना चाहते हैं उत्थे असी पेस्ट करी जा सकते हाँ। सो मल्टीपल टाइम्स असी पेस्ट कर सकते हाँ कॉपी करके चीज़ में। फिर फॉर्मैट पेंटर के नाल असी वो जिहड़ी सेटिंग है ये अगर कोई डिजाइनिंग करनी हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको किते भी यूज कर सकते हैं। फिर ये जिहड़ा टेक्स्ट है इसका असी बाय डिफॉल्ट देखो एक्सेल दे विच कैलिबरी 11 का डिफॉल्ट फॉन्ट एंड साइज है। ये विचों असी इसमें इतने पेस्ट करते हैं एंड देन इसमें सिलेक्ट करके असी इहदा फॉन्ट वड्डा कर सकते हैं। इत्थों असी इहदा स्टाइल
चेंज कर सकते हैं। देखो जेडी भी पिक्चर असी सानू जेड़ा इत्थे फॉन्ट का स्टाइल दिख रहा है वो वाला साडा इत्थे डिस्प्ले भी आ रहा है इत्थे एंड सानू इत्थे भी उसका स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है कि किस तरह का वो फॉन्ट है। Any kind of font you want you can put that font here। बोल्ड दे नालों बोल्ड हो जाएगा, इटैलिसाइज हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, राइट। फॉन्ट ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ कर सकते हैं, जितना मर्जी ਵੱਡਾ चाहते हो ਤੁਸੀਂ उन्ना कर सकते हो। सो ये फॉन्ट हो गया, इन्हों इत्थों कट करके इत्थे पेस्ट कर देना। हुण ये जिहड़ा है फॉन्ट जिहड़ा टेक्स्ट है लिखिया होया 1 2 3 4 ते भरिया होया है। जदों मैं इत्थे कुछ लिख दांगी फिर वो इहदे विच ही रह जाएगा, है ना। बट आई वांट कि सारियां नूं कवर करे, ठीक है, सारियां नूं कवर करे तो किवें होएगा पॉसिबल। ये 4 कॉलम का इहदा चौड़ाई है। सो इसमें इत्थों असीं सिलेक्ट करांगे आ 4 कॉलम्स, फिर असीं लिखांगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर बटन नूं क्लिक कर देंगे। हुण ये जिहड़ा है ये 1 बॉक्स बन गया, 4 बॉक्सेस का 1 बॉक्स बन गया है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। इसमें असीं बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर दे दिता। अगर इस बॉर्डर नूं असीं सो ये हो गया बॉर्डर, ये मर्ज एंड सेंटर करके उसके बाद इसमें बॉर्डर दे देता। ये थल्ले असीं कोई कलर भरना चाहते हैं, इसके उत्ते फॉन्ट डिफरेंट देना चाहते हैं, ये वाला कलर नहीं तो कोई होर कलर तुसीं सिलेक्ट कर सकते हो। इत्थे आपां देना वाला कलर देता, ठीक है। इसमें सिलेक्ट करके थल्ले कोई फॉन्ट हो कलर हो देना है वो दे देता। येलो नाली गेटा बनती है वधिया जी। तो देखो मैं ग्रीन कलर कर बैठी हूँ, इसमें मैं व्हाइट कर दूंगी बस, ठीक है। सो इस तरीके नाल असी एक तो बाद कॉलम्स नूं सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर एंड देन ਉਹਦੇ अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉन्ट ਸੀ कैलिबरी 11 है, एक कैपिटल ए कीता साइज ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। और स्मॉल ए कीता तो साइज ਉਹਦਾ छोटा हो ਜਾਂਦਾ है। तो ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾइज ਦਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾइज ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾइज ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, राइट। सो ये इंक्रीज द साइज टू डिक्रीज द साइज वो ऑप्शन है ये। फिर ये जो टेक्स्ट सीगा लिखिया ये इतने मिडल सेंटर जे च नहीं है, नीमा है, ठीक है। सो इसमें आप सेंटर च कर देंगे या ऊपर कर देंगे, ठीक है। दैट कैन बी डन। इतने ज्यादा है डिस्प्ले आएगा चीज। अब देखो ये नीमा है इन्हें सेंटर च कीता तो इतने आ गया डिस्प्ले, ऊपर कर दिता तो इतने आ गया, ठीक है। ये लेफ्ट इसकी चौड़ाई बढ़ाते हैं। फिर देखो ये लेफ्ट लाइन है, सेंटर लाइन करता, राइट लाइन करता, जो भी जिहड़ी भी सैटिंग है वो तुसीं इत्थों देख के इसनूं कर सकते हो, राइट। सो ये सैटिंग्स है ने जस्टिफाइड सारे फॉन्ट्स जिहड़ा टेक्स्ट है वो डिस्प्ले किवें होवे ते उहदे वास्ते है। फिर अगर असीं बहुत ज़्यादा इत्थे कंटेंट लिखा होया है ते साडा जिहड़ा टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेट्स राइट समथिंग हियर, द साइज घटा लेंगे हां। ये है टेक्स्ट, ठीक है। इत्थे असीं कुछ होर लिख दिता। हुण ये जिहड़ा टेक्स्ट है ये असीं चाहुंदे हां कि रैप हो जाए मतलब इसे कॉलम के विच थल्ले चले जावे, ऐ पिछे ना बैकग्राउंड च लुक जाए। सो ऐ कर दिंदे असीं रैप टेक्स्ट दे नालों थल्ले आ जांदा ओहदा डिस्प्ले, ठीक है। जो भी है जिन्नी इहदी जगह है एरिया उहदे हिसाब नाल वो एडजस्ट हो जांदी है स्पेस, राइट। सो दैट कैन बी डन लाइक रैप टेक्स्ट। फिर ये जो है टेक्स्ट ये नंबर्स या कोई भी टाइप का डेटा किस तरह का डेटा असीं पाना चाहते हैं वो इत्थों डिसाइड होता है। स्पेशल कोई सिंबल पाना है डॉलर साइन है ना, कोई ये वाला सिंबल ये या नंबर अटैच करना हो वो कर सकते हैं।
फिर फॉर्मेटिंग हो गया, कुछ सैल इंसर्ट करना डिलीट करना है वो कर सकते हैं। हुण इत्थे असीं सपोजिंग कुछ नंबर्स लिखते हैं। देखो एक जिहड़ा सीगा ऑटोफिल फीचर असीं 2 लिते ते उस तो बाद असीं इसनूं फिल कर दिता। इत्थे 1 एंड 2 सपोजिंग हुण इत्थे एक सिलेक्ट कीता, इक्को सैल नूं ऐ करके लास्ट एंड कॉर्नर ते लैके गए ते थल्ले नूं ड्रैग कीता ते सेम नंबर डिस्प्ले हो गया। इत्थे 2 सिलेक्ट कीते सीगे, घट्टो घट 2 चाहिए हुंदे, फिर सिलेक्ट करो तां वो वाला नंबर दी सीरीज अगे वध जांदी है। तो जिवें इत्थे 1 3 लिखिया इसने देख लेना है कि एक नंबर मिस करके डिस्प्ले कर रहा है। सो 1 3 डिस्प्ले कर देता है और नंबर्स। सो इत्थे इहनूं सिलेक्ट कीता, फिर ड्रैग कीता ते इहने ईवन नंबर्स दी सीरीज पा दी। फिर इत्थे 5 और 10 दो सीरीज किसी भी सीरीज के 2 डिजिट्स लिखने हैं, उन्होंने दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट करना है। राइट साइड के उत्ते वो करना है, कर्सर से लैके जाना है, फिर ऐ थल्ले तक ले जाना है, तो सारा ही सिस्टम में हो जाता है। इनमें कोई भी टेबल है, ठीक है, किसी भी तरह का टेबल हो गया, कोई भी डिफरेंसेस यूज कर रहे हो तो इस तरीके नाल आ जाता है टेक्स्ट। राइट, सो ये है ऑटोफिल फीचर। देन ऑटो सम उन्हें असी सिलेक्ट किया, ऑटो सम बटन में क्लिक किया तो वो जो कॉलम सीगा वो थल्ले वाले कॉलम के विच टोटल आ जाता है। ऑनलाइन कॉलम सिलेक्ट किए सारे, ऑटो सम किया, वो सारे कॉलम्स के अगे वाले कॉलम के विच ऑटो सम फीचर आ जाता है। ठीक है, सो ये नाल की हुंदा है, सानू पता लग जाता है कि इन्ने नंबर्स का टोटल की है, इधरों इन्ने थल्ले नूं टोटल की है। इस कॉलम का टोटल थल्ले आ गया। देखो आप इतने माउस रखा, ऑटोमैटिकली फॉर्मूला लिख दिता उन्हें, इक्वल टू सम C5 इहदा सैल का एड्रेस है कोलन C16 इस सैल का एड्रेस, इत्थे तो इत्थे तक असीं सिंपली ड्रैग किया, आ वाला बटन क्लिक किया, फिर थल्ले और सम ऑटो सम का फॉर्मूला लिख के पेश कर दिता। सेम वे इथों सिलेक्ट किया इन्ना एरिया, ऑटो सम बटन को क्लिक किया, उन्हें इत्थे टोटल डिस्प्ले करके फॉर्मूला पा दिता। फॉर्मूला की पाया, इक्वल टू सम ब्रैकेट्स दे विच C5 तो लैके H5 तक, ठीक है, पूरी रो का इत्थे टोटल आ गया। तो इस तरीके नाल असीं कर सकते हैं। हुण अगर इहदे विच असीं चेंजेस करदे हां, देखो मैं 10 का 100 बना, 1 का 100 बना दिता, तो तुसीं देखो ये नंबर ऑटोमैटिकली चेंज हो गया। ठीक है, इत्थे 1 का 15 बना दिता, कितने माउस लेके गई तो देखो ये नंबर ऑटोमैटिकली चेंज हो गया। सो ये जो फॉर्मूला है इसका फायदा बहुत है कि जब असं कोई फॉर्मूला रख दिता वा, जब ओरिजिनल सीरीज दे विच कोई चेंज की, फॉर्मूला ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाता है। सो दीज आर सम ग्रेट थिंग्स दैट वी हैव फॉर व्हाइल वर्किंग इन MS एक्सेल। हम सॉर्ट करना है, ठीक है, जिवें आप आही कॉलम ले लिया सी H कॉलम, इन्हों असीं सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड हो गया है ना। अगर असीं सॉर्ट करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, 1 मिनट, असीं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। कहने दी पूरी जिहड़ा टेबल व चार्ट चा बनिया होया असीं सारिआं नूं आपां सॉर्ट कर दिए इस ऑर्डर दे विच, या कल्ली आही लाइन करनी है। तो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन के नाल सिर्फ आही वाला कॉलम जिहड़ा है यही सॉर्ट होएगा, बाकी सारा ज्यों का त्यों उवें ही रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके नाल ये सारा हो गया। राइट, हुण अगर सपोजिंग मैं इसको सिलेक्ट करके सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया तो उन्हें कल्ले उसनों स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्टिंग कर दी। सो दैट वे असीं सॉर्टिंग कर सकते हैं। फाइंड करना है असीं 1 नूं, ठीक है, सो फाइंड जिथे भी 1 1 होएगा वो सानू डिस्प्ले आ जाएगा। नेक्स्ट असीं कर करके देख सकते हैं, सानू 1 दिख जाएगा। रिप्लेस 1 नूं ONE दे नाल कर दो, या 1 नूं 11 दे नाल कर दो, ठीक है, फाइंड करके, ठीक है, उसनों रिप्लेस कर दो। आप रिप्लेस ऑल कह देंगे तो कहता भी 5 जगह 1 सीगा, उसनों असीं 11 नाल रिप्लेस कर दिता है। तो जिथे भी 1 सीगा उत्थे 11 आ जाएगा।
ये सिर्फ आह सिलेक्ट किया ऐसी एरिया इसलिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ अगर मैं कितने भी सिलेक्ट किया फाइंड एंड रिप्लेस दी ऑप्शन कर दिया 1 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ रिप्लेस ऑल ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਪਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 34 ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨੇ 5 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ ਅਸੀਂ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन कर सकते हैं यूज फिर इंसर्ट मेन्यू दे विच की है अपने को टेबल पे है टेबल ਨੂੰ सिलेक्ट किया ਇੱਥੇ ਚਾर्ट देखा ये सारी ऑप्शंस ने ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾर्ट ਅਸੀਂ सिलेक्ट कर लिए वो वाला चार्ट ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ डिस्प्ले हो जाएगा इस कंटेंट ਦਾ ठीक है इंसर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ पिक्चर कोई पिक्चर है वो ਅਸੀਂ इंसर्ट करना चाहते हैं वो पिक्चर उत्थे इंसर्ट हो जाएगी इंसर्ट दे विच शेप any kind of shape we want we can use that shape किसी भी तरह का शेप ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ कोई भी स्मार्ट आर्ट जी है वो ऑप्शन सारे को अवेलेबल हो जाएगी उसमें असं यूज कर सकते हैं अपने शीट के ऊपर चक के कितने बोर्ड भी रख सकते हैं पूरे टेबल में उत्ते असं रह गए तो ये स्मार्ट आर्ट हो गया फिर सारी चार्ट की वैरायटी है टेक्स्ट बॉक्स जिवें वर्ड्स से उवें टेक्स्ट बॉक्स भी पै जाता है उस तो बाद पेज लेआउट के विच सेम एज इन वर्ड किस तरह का साइज तुहानूं चाहिए ज़्यादा डेटा चाहिए डिस्प्ले के लिए थोड़ा डेटा चाहिए मार्जिन बड़े करने हैं नॉर्मल मार्जिन रखने हैं मार्जिन छोटे करने हैं दैट कैन बी डन ओरिएंटेशन लंबे लोड के चौड़े लोड लैंडस्केप या पोर्ट्रेट साइज लीगल लेटर A4 केड़ा डिफॉल्ट A4 हुंदा है ठीक है फिर प्रिंट एरिया कोई एरिया सिलेक्ट करके प्रिंट करना चाहते हो कि सारे नूं प्रिंट करना चाहते हो फिर किसी भी लोकेशन के उत्ते तुसी पेज ब्रेक इंसर्ट पेज ब्रेक उनका पार्ट उस पेज पे आ जाएगा बाकी दूसरी जगह चला जाएगा कंटेंट ठीक है सो ये सब असी कर सकते हैं फिर फॉर्मूला असी देख लिया इक्वल टू साइन लगा के फॉर्मूला ऐड होता है जिवें इत्थे असी इक्वल टू सम फॉर्मूला लिखिया ब्रैकेट्स दे विच पाया इहदा कॉलम है D5 D5 कोलन लास्ट कॉलम साडा है D15 D15 लिख के ब्रैकेट बंद की ते ये साडा फार्मूला आ गया इसका टोटल इन्हें कट के इत्थे लिख दिता ठीक है फार्मूला हो गया हमें यहाँ साडे कोल कई सारे ऑप्शंस ने कई सारे फार्मूले आप यूज कर सकते हैं डेटा एक्सेस तो या इंटरनेट तो या किसी होर सोर्स तो डेटा आप इत्थे इंसर्ट करना है वो चक सकते हैं सॉर्टिंग असी देख ली फिल्टर असी कोई चीज सिलेक्टिवली डिस्प्ले करना चाहते हैं उहदे लई हुंदा है रिव्यू दे विच स्पेलिंग थिसॉरस रिसर्च एंड ट्रांसलेट इज एब्सोल्युटली सेम एज इन वर्ड कमेंट भी सेम वर्ड वांगू हुंदा है व्यू दे विच भी इत्थे डिस्प्ले साडा यह नॉर्मल है पेज लेआउट व्यू है एक पेज उत्ते कितना डेटा होना है पेज ब्रेक को असी देख लिया सीगा भी इन्ना कंटेंट साडा अपने पेज पे आउंदा है कस्टम कर सकते हैं व्यू नो फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं व्यू ठीक है सो ये व्यू हो गया और ये जो ही विंडोज सेम एज इन केस ऑफ वर्ड सो मैक्रो इज आल्सो एब्सोल्युटली सेम एज दैट ऑफ वर्ड सो विद दिस वी फिनिश ऑफ विद MS Excel so see you tomorrow with another content for you to learn